Okay. We were done with flooding. We were done with okay. So today we are going to talk about broadcast routing. Okay. Now, can anyone tell me what is broadcasting? Broadcasting. Broadcast. मतलब yes. मैम एक ही चीज बहुत लोगों को एक साथ बताना। एक ही चीज बहुत लोगों को एक साथ बताना, या तो बहुत लोगों को या सब लोगों को एक साथ बताना, है ना। जैसे एयरपोर्ट पे ब्रॉडकास्ट होता है, जब भी फ्लाइट आती है तो वो पैसेंजर टू फ्लाइट नंबर सो एंड सो आर रिक्वेस्टेड टू गो टुवर्ड्स गेट नंबर व्हाटएवर. So this is a broadcast message. So all the passengers of flight number so and so will, for them, this message is broadcasted, right? Not for everybody who's there in the airport. So it may be, broadcasting could be something that, a message or a packet has to be delivered to many or to all the destinations simultaneously. That is called broadcasting. Okay. Now, there are few ways by which you could do broadcasting. There are I think 4 to 5 such broadcasting methods by which you can, transmit the packets from a source to many or to all the destinations simultaneously. Okay, let's look at these types one by one. But you all understood what is broadcasting, right? Yes, ma'am. है ना? हाँ. So the first broadcasting method, see here, the third point. One broadcasting method that requires no special features is for the source to simply send distinct packet to each destination. मतलब क्या है कि the source is going to send packets to all the destinations, to all the machines. That is one way. Yes? Yes, ma'am. है ना. अगर ये, if there is a source router that has to broadcast a message, there is no other way. Okay, there is no other filtration, there is no other groupism. Then what is this router going to do? This router is only going to send the packets, matlab it will create copies and it will just send the packets to all the destinations because it has to go simultaneously, no? So it will just send the packets to all the destinations without even checking कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, सबको भेज दिया एक साथ में. Now इसमें क्या है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा वेस्ट होगा. Yes. बैंडविड्थ बहुत ज्यादा वेस्ट होगा. और सेकेंड, जो सोर्स राउटर है उसके पास में there has to be a complete list of all the destinations. Yes, ma'am. है ना. उसको पता होना चाहिए कि कितने राउटर्स. सपोज इफ देयर आर मिलियन of computers or nodes in a particular network, it will have to have the list of all the million nodes, all the million computers. So again, see, this method, there are two disadvantages. One is that bandwidth is wasted big time, and second is that source must have the list of all the destinations. Okay. Now, which is the other method? Other method obviously is what you could think of. Can you think of anything? दिया है स्क्रीन पर, it's given. Point to point. Point to point. See, point to point मतलब point to point मतलब क्या? The other obvious technique is flooding. Flooding बताया था ना मैंने. What is flooding? It floods the packets to all the routers. Yes, ma'am. Except the one that it received from. huh? Received Received from. from. It arrived on, है ना. जिस पाथ पर वो अराइव हुआ था उसको छोड़ के बाकी सारे आउटपुट लाइंस पे, सारे पाथ पे वो ट्रांसमिट होगा. फ्लडिंग हमने सीखा था. फ्लडिंग में हमने ये भी पढ़ा है कि एक बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स
duplicate packets arise हो जाते हैं इसमें. There are too many packets which are generated, and these too many packets will consume a lot of bandwidth ना, because they are transmitted here and there. तो उसका जो bandwidth है network का वो पूरा consume करेगा वो. So flooding also is also a not good, not all that great an option for broadcasting. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, the third is multi-destination routing. Now, in multi-destination routing, what happens is every packet, okay, that has to be broadcasted, that packet will consist the list of destinations. See, suppose if the packet has to be transmitted to all the machines, all the routers, then it will be just sent. ठीक है. लेकिन अगर कुछ मतलब ब्रॉडकास्ट सबको नहीं करना है, बट मेनी ऑफ द नोड्स को करना है, इस केस में हम क्या करेंगे? जो पैकेट मुझे ब्रॉडकास्ट करना है वो पैकेट में एक लिस्ट होगी. काय की लिस्ट होगी? डेस्टिनेशंस की लिस्ट होगी. ठीक है. मतलब ये वाला पर्टिकुलर पैकेट हैज टू गो टू विच डेस्टिनेशंस, कहां पे उसको ब्रॉडकास्ट होना है, कौन से मशीन पे ये पहुंचना चाहिए, उसका लिस्ट होता है. वो मशीन का एड्रेस होगा सपोज. ठीक है. अंडरस्टूड दिस मच? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay. So now when a packet arrives at a router, ठीक है, the router will check the destinations का list. ठीक है. वो जो राउटर है वो पैकेट के डेस्टिनेशन का लिस्ट को चेक करेगा. अब वो राउटर को ये मालूम है कि उसके आउटपुट लाइंस कितने हैं, उसको ये भी पता है कि कौन सा डेस्टिनेशन कौन से डायरेक्शन में है ना. द राउटर नोज एवरीथिंग बिकॉज द नेबर्स शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. So what that router is going to do, it is going to check the destinations का list and then it will generate पैकेट का कॉपी बनाएगा और उस डायरेक्शन में ही वो पैकेट भेजेगा जहां जहां पे डेस्टिनेशन है. हर लाइन में नहीं भेजेगा. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll explain you all using the diagrammatic representation, but still अभी एक बार बता देती हूँ. The router generates a new copy of the packet for each output line to be used and includes in each packet only those destinations that are to use that line. I'll show you it. Okay, one second. Just use that. Okay, one second. Yes, can you see this board? Abhi, I think Yes, it's ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. one second. Okay, let me draw one network. One. Okay. Can I write? Marks. Anyways, please manage.
Okay. Now suppose if this is one network, okay, this is the source, this is the router, one. I'll just number them so that it becomes easy. But you have to identify my handwriting. 4, 5. What is time? 7. Okay. Now, see, one packet has been generated here. ठीक है, ये पैकेट आया राउटर के पास में, नोड 1 के राउटर के पास में. ठीक है. नाउ दिस पैकेट का जो डेस्टिनेशन का लिस्ट है, इट द पैकेट विल हैव इट्स डेस्टिनेशन लिस्ट. Yes. So suppose it has to go to root router number 11, router number 5, router number, मतलब मैं डेस्टिनेशन बता रही हूँ 6 and let's say 12. ठीक है. ये 4 मशीन्स के पास उसको जाना है. किसको जाना है? Who has to Packet 1. packet 1. Oh. Okay. Now you see in which direction is 11? 11 is in this direction. Yes. Where is 11 in direction? Yes. So this packet का एक copy बनेगा and it will be transmitted here. अभी ये लाइन में जो डेस्टिनेशंस है ना, वो ही ये पैकेट में डेस्टिनेशंस लिस्टेड रहेगा. ये मतलब अभी ये लाइन में सिर्फ 11 ही है. yes or no? चलो मैं एक और ऐड कर लेती हूँ. 8 पे जाना है उसको. ठीक है. कहाँ जाना है उसको? 8 पे भी जाना है. There are 2 destinations on this particular line. So this packet P1 का जो कॉपी बनेगा, अभी ये P1 के पास जो डेस्टिनेशन की लिस्ट रहेगी, वो ये लाइन के डेस्टिनेशंस की ही रहेगी, दूसरे नहीं. Okay. Yes, ma'am. सो पैकेट 1 के पास में अभी क्या रहेगा? 11 और 8. कौन से डेस्टिनेशन एड्रेसेस होंगे पैकेट 1 के पास में? यहाँ 8 से तो and भेज 11. 8 and 11. ठीक है. फिर 5 भी है तो यहाँ पे एक और कॉपी बनेगा, और ये पैकेट के मतलब ये पैकेट 1 का ही एक और कॉपी बनेगा, और इसका जो एड्रेस यहाँ पे रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, दैट विल बी नंबर 5. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it has to go to 6 and 12 also. Now which direction is 6 and 12? This. So it will transmit the packet to this line also, and here packet P1 ka destination addresses will be what? Tell me. 6 and 12. 6 and 6 and 12. 12. yes. Now after sufficient number of hops, only one address will be remaining. देखो मैं बताती हूँ कैसे. अभी क्या होगा? ये 3 कॉपी बन गई है ना पैकेट की. अब क्या हुआ? ये वाला पैकेट P1 इसके पास में गया. ये डेस्टिनेशन तो है नहीं. अब ये आगे जाएगा, इधर भेजेंगे इसको, और फिर ये 8 डेस्टिनेशन था Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना. तो अभी यहाँ पे वो वाले पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया? P1, और इसका 8 चला गया ना, क्योंकि 8 पे तो ये पहुंच गया. तो अभी क्या होगा? सिर्फ 11. 11. Yes. So after a sufficient number of hops, only one destination address remains in that particular list of the packet. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 5 ही है, तो 5 के पास तो वो पहुंच गया. अभी यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फर्स्ट हॉप. इधर 6 and 12 भी रहेगा. सेकेंड हॉप 6 हट गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? सिर्फ 12. 12. फिर थर्ड हॉप में यहाँ पहुंचा, फोर्थ हॉप में यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे 12 भी चला गया, वो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन. दिस इज मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग. अंडरस्टूड?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड ना? इजी? Yes, ma'am. हाँ, इसमें क्या करते हैं बोलो? लाइन के हिसाब से, मतलब लाइंस को ग्रुप कर देते हैं डेस्टिनेशन के हिसाब से, और डुप्लीकेट कॉपीज बना के वही लाइन पर पैकेट्स को ट्रांसमिट करेंगे जिस लाइन पर वो डेस्टिनेशन है। सब जगह नहीं जाएगा ये पैकेट, ये इस लाइन पे नहीं गया क्योंकि यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन था ही नहीं। समझा? उसी Yes, लाइन ma'am. पर, उसी लाइन पर पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे जिस लाइन पर डेस्टिनेशन है। अभी जब पैकेट ये राउटर के पास में आया था, राउटर 1 के पास, तभी उसके पास में लॉन्ग लिस्ट ऑफ एड्रेसेस था ना। देन क्या हुआ, उसको डिवाइड कर दिया लाइन के हिसाब से। अब मैंने 3 कॉपीज बना दी उसकी। 3 कॉपीज क्यों बनाई? क्योंकि इन तीनों लाइन पर वो एड्रेसेस है, डेस्टिनेशन एड्रेसेस है। ये लाइन पर 8 और 11 है, ये लाइन पर 5 है, ये लाइन पर 6 और 12 है। इसीलिए मैंने हर एक लाइन पर एक नया कॉपी बनाया वो पैकेट का। उसके डेस्टिनेशन एड्रेसेस यहाँ पे उसी लाइन के जो मशीन्स है वही आएंगे। मतलब ये देखो 11 और 8, ये जो लिस्ट में से ये पर्टिकुलर लाइन में कौन से एड्रेसेस है? 11 और 8। इसीलिए ये पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी नाउ 11 एंड 8। ये वाले लाइन पे मैंने अगर पैकेट ट्रांसमिट किया है तो क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 है। नंबर 5 इज द डेस्टिनेशन एड्रेस। सो इसीलिए ये पैकेट के लिस्ट में सिर्फ 5 रहेगा, क्योंकि ये लाइन में सिर्फ 5 है। डेस्टिनेशन एड्रेस के एड्रेस की लिस्ट देखो, इस लाइन में सिर्फ 5 है ना। Yes, ma'am. और भी Yes, आगे ma'am. होती, अगर ये लाइन, ये वाली लाइन अगर और भी आगे होती तो भी मैं 5 के लिए यही लाइन पे भेजती ना इसको। Yes. फिर थर्ड वाली लाइन देखो, ये एक कॉपी मैंने बनाया पैकेट का। इसमें मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस का लिस्ट क्या डाला? 6 और 12। क्यों? क्योंकि यही लाइन में 6 भी है और 12 भी है। जहां जहां उसको जाना है, उसको नंबर 3, नंबर 10, नंबर 13 पे ब्रॉडकास्ट नहीं होना है, उसको सिर्फ 6 और 12 पे ही ब्रॉडकास्ट होना है। तो वो ही उधर ही भेजो ना। सब मशीन्स के पास में फालतू में बैंडविड्थ क्यों कंज्यूम करना है? समझा? दिस इज राउटिंग। ओके, अंडरस्टूड अ वर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let's see what is the 4th broadcast algorithm. All right, now 4th broadcast algorithm is an algorithm which talks about spanning tree. I had told you what is spanning tree or sync tree. मतलब हर एक राउटर के लिए एक ट्री बनेगा। मतलब हर एक राउटर के पास में स्पैनिंग ट्री का लॉजिक होना चाहिए वो स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो हर एक राउटर एज द सोर्स राउटर, एज अ रूट राउटर will design its own sync tree or spanning tree. Now, what do you mean by sync tree? Sync tree or spanning tree is a tree which consists of the routes, best routes to reach any other router, but no loops. There are no loops. When the loops are avoided, one router will receive the packet only once. It will not receive the packet multiple number of times. Understood? Yes, ma'am. क्योंकि लूप्स आते हैं, when there are loops, that means what? कि एक राउटर के पास में पहुंचने के लिए मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है ना। लेकिन स्पैनिंग ट्री क्या होता है? एक ऐसा ट्री है जिसमें लूप्स नहीं रहते, यानी एक राउटर से दूसरे राउटर के पास पहुंचने के लिए usually we term it as a best route available and we the packets are transmitted only on those routes, but loops नहीं है तो there are no multiple routes available to transmit packets. So multiple routes अगर नहीं है तो multiple packets भी नहीं जाएंगे. This is the 4th broadcast algorithm. But in this algorithm what happens is हर एक router, the only problem is that every router should have spanning tree logic. Otherwise it won't work. And कभी कभी logic रहता भी है, कभी नहीं भी रहता है. ठीक है, so that's the only problem. Otherwise this method makes excellent use of bandwidth because it generates very less number of packets, minimum number of packets to do the job. Okay, so this is your 4th. I'll tell you, see this is the sync tree or the spanning tree.
ये क्या है, ए वाला क्या है, तुम्हारा सबनेट है, नेटवर्क है, सबनेट, ठीक है। अब ये जो स्पैनिंग ट्री होता है ना, स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ योर सबनेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस? नो मैम, नहीं समझा। No. Spanning tree is a subset of your subnet. ये सबनेट है, ये सबनेट है कि नहीं, Yes, ma'am. Yes. है ना, सबनेट है या नेटवर्क बोलो, चलो ये एक नेटवर्क है, छोटा सा पार्ट ऑफ नेटवर्क, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये जो बी वाला डायग्राम है ना, दिस इज अ स्पैनिंग ट्री और अ सिंक ट्री. Now this spanning tree, what did I tell you? What is the definition of a spanning tree? That there are roots, but there are no loops. ये देखो, जहां पे भी loops का चक्कर हो रहा था ना, वो लाइन ही निकाल दिए. ये देखो, Yes, ma'am. दिखा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। So when there are no loops, that means what? Multiple routes are avoided. When multiple routes are avoided, packets, duplicate packets ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादा packets transmit नहीं होंगे. Correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ. यस मैम। ये जो सिंक ट्री है, ये हमने बनाया कहाँ से है? यही से ना, ये इसी का पार्ट है, लेकिन इसका सबसेट है. क्यों सबसेट है? क्योंकि हमने इसके लूप्स हटा दिए हैं. अगर मैं यहां पे भी लूप्स डाल दूं तो दिस विल बी एज गुड एज अ सबनेट, इक्वल टू सबनेट. Yes, ma'am. Yes. तो मैंने अगर लूप्स हटा दिए हैं, दैट बिकम्स व्हाट? सबसेट. सबसेट तो पता है ना क्या होता है. Yes, ma'am. So spanning Yes, tree, ma'am. yes, now you understood. Spanning tree is a subset of your subnet only. समझा? यस मैम। Yes. हाँ. तो अभी स्पैनिंग ट्री का समझ में आ गया. देखो, अगर मैं स्पैनिंग ट्री से मैसेजेस ट्रांसमिट करूं ना, तो कम पैकेट्स जाएंगे ना, डुप्लीकेट पैकेट्स बहुत कम, मतलब आएंगे ही नहीं, क्योंकि लूप्स ही नहीं है. सो अगर ये फोर्थ ब्रॉडकास्टिंग एल्गोरिदम हम यूज करें, तो दैट इज इट मेक्स यूज ऑफ बैंडविड्थ really, in a very excellent manner, because duplicate packets don't arise only. Not too many packets are transmitted here and there. ठीक है? So that is your fourth broadcasting algorithm. Understood or what? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मुझे राउटर आई से ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, तो ये वाला सबनेट देखो. पहले यहां से अगर मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, तो मैं यहां भी भेजूंगी, एच को भेजूंगी, एफ को, जे को, एन को, ठीक है, राइट. अब मैंने एच यहां से भेजा, मैं एफ को भी भेजू तो एफ से भी एच को मिलेगा, Yes. है ना. एन को भेजूंगी तो एन से भी एच को मिलेगा. Yes. यहाँ पे होगा क्या वो चीज? No. No, ma'am. यहाँ पे सिर्फ आई टू एच ही होगा. देखो, आई टू एच ही होगा. वो यहां से भी नहीं भेज सकता, वो यहां से भी नहीं भेज सकता. यहाँ पे ये लाइन ही नहीं है, तो भेजेगा कैसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? Yes. Yes. Now you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So now the last broadcast algorithm in broadcasting routing is reverse path forwarding. ठीक है. अभी ये क्यों यूज होता है? जैसे कि मैंने बताया कि स्पैनिंग ट्री में अगर राउटर्स के पास में वो लॉजिक नहीं है स्पैनिंग ट्री बनाने का, तो वो लोग तो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग यूज हो सकता है. रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में क्या होता है? स्पैनिंग ट्री ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट होता है, बट वो लोग कुछ गेस वर्क और एस्टिमेशन निकाल के स्पैनिंग ट्री क्रिएट करते हैं. यहाँ पे रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग को, उसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड पाथ. ठीक है. पहले मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद में मैं उल्टा जाऊंगी इसमें, उसके बाद में मैं तुम लोगों को समझाऊंगी कि प्रेफर्ड पाथ क्या होता है. जनरली प्रेफर्ड पाथ क्या होता है कि जब हम एक रूट यूज करते हैं, नॉर्मली व्हेन वी यूज अ पर्टिकुलर रूट, नॉर्मली फॉर ऑल आवर ट्रांसमिशन, नॉर्मली आई यूज दिस रूट ओनली.
एडवर्स सिचुएशन में आई चूज सम अदर रूट, वो एडवर्स सिचुएशन में। लेकिन हमेशा मैं कौन सा रूट चूज करती हूँ, एक पर्टिकुलर रूट चूज करती हूँ। तो दिस इज माई प्रेफर्ड पाथ एंड इट इज that your preferred path is a path of the spanning tree। ये लोग ऐसे एस्टिमेट निकालते हैं, क्योंकि स्पैनिंग ट्री का अगर ऑटोमेटिक लॉजिक नहीं है तो वो लोग एस्टिमेशन करते हैं और एक स्पैनिंग ट्री खुद डिजाइन करते हैं, खुद बनाते हैं राउटर्स। बट उसको स्पैनिंग ट्री नहीं बोलेंगे हम लोग एग्जैक्टली, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफर्ड पाथ। समझा क्या? Yes, ma'am. First, let's understand what is this diagram. Okay, so I told you that this is the subnet, this is the spanning tree. Okay, now we have to, this is a tree which is a reverse path forwarding tree for router I। ठीक है, राउटर I के लिए हम लोग बना रहे हैं। ओके, अभी सी वापस से मैं तुम लोगों को बताना पड़ेगा मुझे। प्रेफर्ड पाथ का मीनिंग ये है कि अगर एक पैकेट आया है एच के पास, ठीक है, यहां से आया है, सपोज एच के पास वो पैकेट यहां से आया है, आई से आया है। समझा? इतना समझा? एच के पास एक पैकेट कहां से आया है, आई से आया है। तो अभी एच एज ए राउटर विल सी कि कौन से पाथ पे आया है। ये वही पाथ है क्या जो नॉर्मली मैं यूज करता हूँ आई को देने, आई को कुछ भी ट्रांसमिट करने के लिए, या यूज करती हूँ आई को कुछ भी ट्रांसमिट करने के लिए। एच विल सी दैट कि इज दिस पाथ नॉर्मली यूज्ड बाय मी टू ट्रांसमिट एनी पैकेट टू राउटर आई। इफ द आंसर इज यस, दैट मीन्स दिस इज द प्रेफर्ड पाथ। और अगर पैकेट यहां से आया तो उसको समझ जाएगा कि ये नॉर्मल रूट नहीं है, इसीलिए उसको लगेगा कि ये डुप्लीकेट पैकेट है और वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो प्रेफर्ड पाथ पे नहीं आया है। समझा? Yes. Yes, ma'am. अभी ये तुम लोगों को तो पता है कि ये स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये अज्यूम करो कि ये हमने प्रेफर्ड पाथ से बनाया है, ठीक है, ये विच इज एज गुड एज स्पैनिंग ट्री ओनली। Now you see, look at this diagram, which is reverse path forwarding tree, which is for router I. Now, I is the source node because it is generating the packet. Okay, it is transmitting the packet. Now, what are the direct, क्या बोलेंगे, direct, what do you call that? Neighbors of I. Who are the direct neighbors of I? F F H J and ये सबनेट देखो, F H J और N. L, ये उसके डायरेक्ट नेबर्स हैं। yes, ma'am. अभी ये वाला डायग्राम देखो, I to F लिंक है, Yes. Yes, ma'am. मतलब ये प्रेफर्ड पाथ है। I to H लिंक है, Yes, दैट मीन्स दिस इज द प्रेफर्ड पाथ। I to J लिंक है, yes, ma'am. दैट अगेन मीन्स इट इज अ प्रेफर्ड पाथ। I to N लिंक है, Yes, ma'am. again it implies that this is the preferred path. So I say F, H, J और N, second hop में वो packet will be transmitted to F, H, J और N. Now because these were the preferred path, ये F, H, J और N को हमने एक सर्कल के अंदर डाल दिया है। दिख रहा है सर्कल? Yes. Yes, ma'am. क्योंकि ये प्रेफर्ड पाथ पे आया है, ठीक है। अब F को देखो, F किसको कनेक्ट कर रहा है? A को कनेक्ट कर रहा है, और किसको कनेक्ट कर रहा है? D. D। डायरेक्ट नेबर्स देखने के, हाँ, F A को कनेक्ट और D को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने नीचे वापस 2 ब्रांचेस कर दिए, A और D। अभी देखो सिंक ट्री, देखो B वाला डायग्राम देखो, कहाँ पे बोला, हाँ, F to A लिंक है, Yes, ma'am. yes, so that means it is a preferred path। यानी A के पास जो पैकेट आया है वो उसको रखेगा, डिस्कार्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब F से D देखो लिंक है, Yes. तो ये भी प्रेफर्ड पाथ पे आया है और ये वो पैकेट रखेगा। समझा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी H देखो,
इधर 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 देखो, एच सबनेट में देखो, एच इज कनेक्टेड टू ई एंड के. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. नाउ यू सी द Yes, सिंक ट्री. ma'am. हाँ, नाउ यू सी द सिंक ट्री. एच और ई के बीच में और एच और के बीच में लिंक है क्या? No. No, ma'am. नहीं है. मतलब एच से जो पैकेट ई और के पे गया है वो प्रेफर्ड पाथ पे नहीं गया है, तो वो क्या करेगा, उसको आगे नहीं ट्रांसमिट करेगा, वो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा. इसलिए ये सर्कल में नहीं आया है. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आगे का ट्री रीड करो, देखो तुमको पूरा समझता है क्या. जे को देखो अभी. लुक एट जे नाउ. जे इज कनेक्टेड. नाउ लुक एट सबनेट. लुक एट द सबनेट. J is connected to G and O. Yes. Yes, ma'am. Now look at the sync tree. J to G and J to O exist. मतलब it is a preferred path. यानी कि वो पैकेट वो रखेगा. Yes, ma'am. As a first copy of पैकेट है वो उसको रखेगा G और O. अब आगे देखो N देखो. Now look at the subnet. N is connected to I, M, O. Now I is the root, तो वो चला गया पिक्चर में से, क्योंकि आप वापस रूट को तो नहीं लेके आ सकते ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. सो एन का उन लोगों ने एन के सिर्फ एम और ओ ही किया है. क्या? क्यों? क्योंकि आई इज अ पेरेंट नोड ना, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड. अभी ये बिकॉज इट डजंट गो ऑन द लाइन दैट इट अराइव्ड ऑन, इसीलिए आई विल नॉट बी काउंटेड. सो एम और ओ. नाउ यू सी एन टू एम लिंक है, एन टू ओ लिंक है क्या? No, ma'am. No, ma'am. नहीं. तो एम को सर्कल किया है, ओ को नहीं किया है. यानी ओ के पास पैकेट पहुंचेगा बट डिस्कार्ड हो जाएगा. समझा? That is ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अभी Yes. आगे देखो. Yes, ma'am. हाँ, अभी आगे देखो. ई देखो, सबनेट देखो. ई इज कनेक्टेड टू एच एंड ए, लेकिन यहाँ ए नहीं हो सकता क्योंकि ए उसका पेरेंट नोड है. ठीक है, वहां से पैकेट आया होगा तो वो ए नहीं हो सकता. अभी सिर्फ एच बचा, तो अभी ई टू एच है क्या? No, ma'am. No, ma'am. तो वो सर्कल में नहीं होगा. हाँ, तो वो सर्कल में नहीं होगा. ठीक है, अभी ऐसे कर करके ना ये पूरा रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग का ट्री बनता है. ठीक है, और ये ट्री बनाने के बाद में वो पैकेट्स ट्रांसमिट उन्हीं नोड्स पे होते हैं जो यहाँ पे preferred में आए हुए हैं, और यहाँ पे भी पैकेट्स पहुंचेंगे बट वो डिस्कार्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी देखो कितने हॉप्स लगे मुझे. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 हॉप्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One to complete one broadcast. How many hops did I take? 5. And how many packets? Count करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. कितने? 24. 24. 24. Now you have a book and a pen with you. Yes, ma'am. Now you don't look at the subnet. Now you only look at the spanning tree and you design this. देखो क्या होगा उसमें. F, H, J और N तो आएगा जैसा है, लेकिन ये वाले ब्रांचेस ही नहीं आएंगे. E और K, O, G, D, N, H, L, B, H ये वाले ब्रांचेस आएंगे ही नहीं. तो ये वाले नोड्स डिलीट हो जाएंगे, मतलब मेरे ट्री में आएंगे ही नहीं ना, रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, और नंबर ऑफ हॉप्स भी कम हो जाएगा. कितना हॉप्स होएगा अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगी तो? You don't have to look at the subnet. Okay. 13. 13 के 13. 14 पैकेट्स होंगे क्योंकि ये वाले सब निकल जाएंगे. और हॉप्स कितने होंगे? हाउ मेनी हॉप्स? How many? 4 hops. Yes. See, फर्स्ट हॉप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना वो ट्री, क्योंकि ये दोनों तो प्रेफर्ड पाथ पे है ही नहीं, तो इस तक इधर तक भी वो जाएगा ही नहीं. एल के पास में पैकेट जाएगा ही नहीं, वो बी तक ही रहेगा. अगर तुम सिर्फ स्पैनिंग ट्री देखते हो तो
अगर सबनेट देखकर प्रेफर्ड पाथ बनाकर ट्री बनाते हो तो 5 हॉप्स और 24 पैकेट्स लगेंगे, बट अगर स्पैनिंग ट्री का लॉजिक है और स्पैनिंग ट्री देख के कर रहे हो तो 4 हॉप्स और 14 पैकेट्स में काम हो जाएगा। समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is broadcast routing. Understood or what? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see the last type of routing which is multicast. Now multicast में क्या होता है ना, देखो अभी जैसे नेटवर्क रहता है, नेटवर्क में देयर आर कंप्यूटर्स में प्रोसेसेस होते हैं, तो देयर आर सर्टेन टास्क जिसमें प्रोसेसेस का ग्रुप बना हर एक सी अभी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल if there are, let's say, a very huge network, okay, of million computers, million nodes, उसमें से 1000 nodes के processes को का एक ग्रुप बना दिया है। मतलब रिक्वायरमेंट ये है कि 1 मिलियन कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में है उसमें से 1000 कंप्यूटर्स के प्रोसेसेस को मुझे कुछ मैसेज देना है, ठीक है? तो मैं ये कैसे करूंगी? अगर होता तो 1-to-1 मैसेजेस भेज सकते थे, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप है और तो मैं कैसे करूंगी? एक तो मेथड ये है कि मैं ब्रॉडकास्ट कर दूं, लेकिन ब्रॉडकास्ट करने के लिए वो के साथ में बाकी सारे मशीन्स को डेटा मिलेगा, बाकी सारे मशीन्स के पास में मैसेज जाएगा। डू आई वांट दैट? No, ma'am. नो। अगेन व्हाई डू आई डोंट वांट दैट? क्यों नहीं कर? Bandwidth. You want to send a particular. यस, No, व्हाट डिड यू जस्ट से? कम अगेन। ma'am, because when you want to send the data to particular amount of destination machines. Yes, the data has to go to only those 1000 machines, but why am I not broadcasting it to all the machines? Bandwidth consume the bandwidth. It will consume the bandwidth plus data will go to machines जिसको नहीं चाहिए. Unnecessary packets will be generated. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if the bandwidth is wasted, network performance degrades. This we all agree. Yes, ma'am. Yes. Yes. So ऐसे केस में क्या होता है ना, हर एक राउट मतलब नोड का प्रोसेस वो एक एक ग्रुप को असाइन हो जाते हैं, ठीक है? और ग्रुप को असाइन होने के बाद में वो राउटर को, वो होस्ट को राउटर को बताना होता है कि दिस प्रोसेस हैज असाइन टू ग्रुप नंबर 1 or group number 2, and now one process can belong to more than one processes, मतलब more than one group, sorry, one process can be assigned to more than one groups, ठीक है? तो पहले क्या होगा कि वो जो ग्रुप्स है, वो जो प्रोसेसेस है उसके ग्रुप्स बनेंगे, वो ग्रुप नंबर दिए जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स तो नहीं बना सकते हम, ग्रुप नंबर दिए जाएंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, अकॉर्डिंग टू कैसा काम है उस हिसाब से, ठीक है? जैसे ही वो ग्रुप को असाइन हो गया, वो होस्ट जो है यानी वो कंप्यूटर जो है वो राउटर को बताएगा, क्योंकि राउटर एक दूसरा डिवाइस है, दूसरा एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस है ना, उसको बताना पड़ेगा दैट दिस होस्ट का प्रोसेस हैज बीन असाइन टू ग्रुप नंबर 1, 2, एंड या तो राउटर को वो बताएगा या राउटर खुद उसको पूछेगा, जैसे भी है, ठीक है? फिर अभी सपोज अगर उसके बाद में क्या होता है, वो जो नेटवर्क बन जाता है उसके बाद में ग्रुप असाइन हो गए, उसके बाद वी डिजाइन अ स्पैनिंग ट्री. ओके, नाउ हैव अ लुक एट द डायग्राम. सी, दिस इज द सबनेट. ओके, एंड दिस राउटर का जो प्रोसेस है दैट इज असाइन टू ग्रुप नंबर 1 and 2. This router is assigned to group number 1, 2. This is assigned to group number 1. This is assigned to group number 1. This is for 2. ये 2, ये 1, ये 2. ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे लूप्स है, तो ये जो B वाला डायग्राम है उसमें मैंने क्या किया है, सारे लूप्स निकाल दिए, स्पैनिंग ट्री कर दिया है. क्योंकि क्यों स्पैनिंग ट्री किया है? क्योंकि
लूप्स रहेंगे तो पैकेट्स ज्यादा ट्रांसमिट होंगे, ज्यादा बार मिलेंगे, डुप्लीकेट पैकेट ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्पैनिंग ट्री. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. अभी अगर मैं ग्रुप नंबर 1 के लिए मल्टीकास्ट राउटिंग का ट्री बनाऊं, मतलब उसका रूट बनाऊं, तो ये रूट आएगा जहां जहां पे भी 1 राउटर है वो आएगा. देखो ये आएगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, फिर ये आएगा, लेकिन दिस विल नॉट बी एन एक्टिवेटेड थिंग बिकॉज दिस इज वाया. यहां पे पहुंचने के लिए उसको इधर से जाना ही पड़ेगा, राइट? तो यहां पे वो रिसीव नहीं होगा, इट विल बी ट्रांसमिटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड गर्ल्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो 1 का मैंने राउट ये बना दिया है रूट. जहां जहां पे भी ग्रुप नंबर 1 के प्रोसेसेस है उसका रूट ये होगा. तो अभी ये वाले राउटर के लिए मैंने ये पूरा जो डायग्राम है ये किसके लिए बना है? सोर्स राउटर कौन है? ये है. ठीक है, सोर्स राउटर कौन है? ये वाला है. तो भी दिस इज असाइंड टू ग्रुप नंबर 1. सो इफ आई हैव अ पैकेट व्हिच हैज टू गो टू all the groups, all the machines assigned to group number 1, what is my requirement? That I have a packet that has to be traveled to all the machines that has assigned to group number 1. तो मैं क्या रूट फॉलो करूंगी? ये देखो, जहां जहां पे भी 1 है ये वाला रूट आएगा. इससे मैं सारे ग्रुप नंबर 1 को मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकती हूँ. कुछ बच गया है क्या? No, ma'am. है ना? देखो 1 यहाँ है, यहाँ पे है ऊपर, और एक इधर नीचे और ये इधर. तो उतना कवर हो गया है. Yes, ma'am. ओके, उसका एडजेसेंट जो रूट है दैट इज फॉर ग्रुप नंबर 2. तो ग्रुप नंबर 2 फॉर दिस राउटर विल बी यहाँ, ये आएगा, इधर वाला आएगा बिकॉज दिस इज असाइन टू ग्रुप नंबर 2. देखो ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, तो ये पूरी लाइन तो आएगी ही आएगी. इधर नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 1 को असाइंड है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मैम Yes, बट ये ma'am. डायरेक्ट भी तो कनेक्ट कर सकता था ना. किसको? ये मतलब उसके जो सामने नीचे वाला जो लाइन है उसको डायरेक्ट भी तो कनेक्ट कर सकता था ना वो. नीचे वाला कौन सा लाइन? मैम आपका वो एरो नीचे करो. हाँ नीचे नहीं, ऊपर वाले जहाँ पे 2 लिखा है हाँ, उसके पहले वाले, ये उसके बाजू वाले मतलब. ये हाँ हाँ, ये दोनों कनेक्ट कर सकता था ना वो. हाँ, लेकिन इधर लिंक नहीं है ना. अच्छा. ये दोनों राउटर्स ऐसे कनेक्टेड नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक. ओके मैम. वो इधर से या इधर से ही जाएगा, इसलिए इधर इधर डायरेक्ट नहीं आया है. समझा? तुमको इसको बेस लेना है, इसको ही बेस लेना है. तो भी यहाँ पे अगर लिंक नहीं दिया है तो तुम बना नहीं सकते बिकॉज दिस इज योर नेटवर्क. ओके मैम. अंडरस्टूड? यस मैम. हाँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मल्टीकास्ट में फिल्टर हो जाता है, रूट्स फिल्टर हो जाते हैं. डबल ट्रिपल रूट्स पे नहीं जाएगा, सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स के पास में जाएगा जो ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट आई है और जो उसको असाइंड है. अभी ग्रुप नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं. ठीक है, ये ग्रुप मैनेजमेंट राउटिंग एल्गोरिदम का बर्डन नहीं है, उसका एक अलग ही वो होता है, टॉपिक है. बट वो राउटिंग एल्गोरिदम का बर्डन नहीं है कि वो ग्रुप कैसे असाइन हो रहा है, वो सब नहीं है. बट असाइन होने के बाद में ट्रांसमिट कैसे हो रहा है वो मल्टीकास्ट राउटिंग का काम है. तो वो ये ऐसे होता है, स्पैनिंग ट्री करके अगर ग्रुप नंबर 1 के लिए डेटा जाएगा तो ये वाला ट्री फॉलो होगा, ग्रुप नंबर 2 के लिए डेटा जाएगा तो ये वाला ट्री फॉलो होगा. अभी ग्रुप नंबर 1 के लिए डेटा जाएगा कहां से? इट इज ये जो जितने भी डायग्राम्स हमने बनाए हैं, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर राउटर. ऐसे ही ये राउटर का भी होगा, ये राउटर का भी होगा, ये राउटर का भी होगा. अंडरस्टूड और व्हाट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is all about routing, and here we finish with the portion of DCN. So let me stop sharing and